Okay. Ayush, Vinith, Kadambari, Vaishnavi. Okay, guys, welcome once again in the class after a gap of a week. Okay, we're back once again. So, hope you people are doing well at your home, your study also, taking precautions for the corona. Okay, welcome, welcome. Okay, all right. So, I'm audible to everyone. Okay, from your comments, I can say. Okay, so very first, tell me that is everyone safe at your home? That's good. Okay, Ayush Goyal ji, Goji, okay, Goya ji, Vishal, okay. So all of you are present in the last lecture, right? Who was not present in the last lecture? Comment only those who was not present. Ayush Goya ji, was you there? Okay, so I hope I gave you exercise, okay, on the first lesson. I hope you have gone through that Google Classroom and you find the exercise over there. And I hope you have completed it. So, who are those students who have completed exercise and submitted? Kadambari is saying yes. Anybody else? If you have not prepared, okay, if you have not done the exercise, write down no. Okay, just don't be quiet only. Don't keep quiet. Those who have not completed it yet. Who? Okay, Kadambari has completed. Okay, apart from Kadambari, those who have not completed it yet, kindly write it here. Okay, is my voice clear? Okay, Vishal is saying okay, half remaining. Okay, all right, all right. So, friends, let me tell you one thing that okay, whatever we are studying, whatever I'm teaching you, whatever you are getting through it will not last longer. वो अधिक समय तक आपके ध्यान में नहीं रहेगी जब तक आप उसे बार बार पढ़ोगे नहीं. ओके, तो क्या करना है आपको? उसे रिवाइज करना है. और जब भी लिखते हैं हम तो क्या होता है, रीडिंग से ज्यादा लिखने में हमारे ध्यान में रहता है. ओके. ओके, so can anybody tell me that which chapter we are studying right now? Let's start the today's lesson. Okay, tell me that which lesson that we are studying right now. Let me share my screen. I hope it is visible to all of you. Okay, visible. Ayush Mehta is saying visible. Ayush. Okay, Vishal is saying yes. Okay, विशाल को दिख रहा है, विनीत को, वैष्णवी को, घाटकर. ओके, वैष्णवी घाटकर. All right. So friends, here is your textbook. All right. India events after 1960. मतलब 1960 के बाद, मतलब भारत का जब हम स्वतंत्र हुए, हमें इंडिपेंडेंस मिला,
उसके बाद में इंडिया में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है, ओके, उनके बारे में हम देखेंगे। वेदर इट इज पॉलिटिकल, whether it is industrial, whether it is related to science and technology. Okay, so anything in between that. So in that we have covered some point in the last lecture, few points. Okay, we have seen the introduction. We have seen that India was facing different issues. That issues were economical, political, and social development issues. So how India tackled that issues. So we discussed about that. After that, we have seen the 1960s. What different events that took place in 1960s? ओके, 1960 के दशक में जो कुछ घटनाएं भारत में हुई, जो कुछ घटनाएं घटित हुई, तो उन सब के बारे में हमने देखा। Who was the prime minister? Okay, at that time, how we fought the war with China and the Pakistan. After that, Pandit Jawaharlal Nehru passed away. Then Lal Bahadur Shastri became the prime minister in 1964. Then in 1965, again war between India and Pakistan. Okay. Then again Lal Bahadur Shastri passed away in 1966. So in 1966, Indira Gandhi became prime minister. So we have seen that how India fought war. Okay, in 1970s, India fought war between with the Pakistan, and this resulted into formation of new nation, क्रिएशन ऑफ न्यू नेशन। हमने क्या किया, 1971 का जो युद्ध हुआ हमारा पाकिस्तान के साथ, उसके जरिए एक देश का निर्माण हुआ। पाकिस्तान के हमने दो टुकड़े कर दिए उस वक्त। पहला टुकड़ा रहा वो पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, और दूसरा टुकड़ा हो गया बांग्लादेश, जो अभी हम उसे बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ओके, आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट इंडिया, हाउ इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड और कैरी आउट न्यूक्लियर अंडरग्राउंड एटॉमिक डिवाइस टेस्ट, ओके, इन 1974। 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नाम करके हमने उस जो हमारा सीक्रेट मिशन था, एटॉमिक बॉम्ब को डिवाइस को हमको टेस्ट करना था, हमने क्या किया, वो हमने जो डेजर्ट था राजस्थान का, उसमें पोखरन नाम का एक विलेज है, उधर हमने बहुत बड़ा कुआं खोदा। उस कुएं में हमने वो डिवाइस डाले। फिर उसके बाद वी फिल्ड इट विथ soil, and then we detonated that over there, and successfully we became a nuclear nation, or we tested atomic device over there also. This is for the 1974. So in 1975 what happened, the people in the Sikkim, okay, there was a emperor in the Sikkim. Okay, he was not the part of Maharashtra. That Sikkim was not the part of India at that time. So in 1975 what happened, that people get angry over their emperor, their king, and one plebiscite happened. Plebiscite मतलब जनमत, ओके, वहां पर वो जनमत संग्रह हुआ, और उसमें those people who were living in the Sikkim, they voted that yes, we have to join India, we want to join India, and in this way in 1975 Sikkim became the part of India. It became full-fledged state in Indian Federation. Okay, so in the last lecture we have seen up to this. Hello, am I audible? Okay, I have just revised it for you people. Okay, I revised this topic so that you will get link to, okay, आपको एक लिंक महसूस होगी। ओके, एक लिंक कनेक्ट कर सकेंगे आप पिछला और आज का जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक। सो शैल आई स्टार्ट नाउ द लेसन, आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, तो हमने बड़े विस्तार से पिछले लेक्चर में देखा था कि कैसे 1960 के जो 10 साल थे, उसके बाद 1970 के जो 10 साल थे, तो वो जो डिकेड थे उसमें कैसे महत्वपूर्ण घटनाएं घटी वो हमने देखा। अभी क्या देखेंगे, हमने देखा 1975 तक। तो ये हम किसके अंडर देख रहे हैं?
So we are studying this under the 1970s, whatever the different things happened in the 1970s. So the most important thing is 1971, the war between India and Pakistan. Second one, in 1974, we detonated nuclear device. In 1975, Sikkim became the part of India. After that, during this decade, see here, during this decade, the political situation in India grew unstable. Okay, what happened, friends? Who was the prime minister at that time? Can anybody tell me? Who was the prime minister at that time? Okay, Vinith is saying Indira Gandhi. What about other students? What according to you, or whatever the information you have? Who was the prime minister at that time? Means in this decade up at 1975. All right. So everybody know Indira Gandhi was the prime minister at that time. So what happened in that decade? Political situations in India grew unstable. क्या हुआ इंडिया में उस वक्त जब 1975 के बाद जो टाइम आया उस वक्त इंडिया में पॉलिटिकल सिचुएशंस बहुत बिगड़ने लगी. ओके, जो राजनीतिक पार्टी है डिफरेंट, वो प्रोटेस्ट करने लगे इंदिरा गांधी के खिलाफ. ओके, 1971 में आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, जब भी किसी दो कंट्री में युद्ध होता है तो यो वो युद्ध दोनों भी कंट्रीज को 10 से 20 साल पीछे ले जाता है. मतलब क्या करता है, कंट्री का सारा पैसा वो युद्ध खा जाता है. अगर एक भी दिन आपको वॉर लड़ना है तो आपको इतने पैसे लगेंगे कि उसका असर आपको कई सालों तक दिखाई देगा. तो उसके वजह से क्या हुआ, 1972 में आपको पता है देर वॉज अ फेमिन इन इंडिया इन 1972. 1972चा जो दुष्काळ आहे तर तो भारतात आला. पुन्हा the financial or economical condition of the India was not good at that time. So there was a problem, okay, in the India at that time. And along with all these problems, there was political situation grew unstable. Instability निर्माण हुई इंडिया में उस वक्त की. The Allahabad High Court gave the verdict in 1974 that Indira Gandhi, the then Prime Minister, has misused the government machinery during her election campaign. Okay, what happened there? In 1974, there was a case filed against the Indira Gandhi. You know, for to becoming the Prime Minister, Indira Gandhi, uh, okay, she fought the election, and some people go to the court. Okay, they went to the court. Okay, they filed case against Indira Gandhi. And what was the case? They filed the case that Indira Gandhi has used government machineries, okay, to इन हर इलेक्शन कैंपेन. अभी आपको पता है जब भी कहीं पर इलेक्शन होते हैं तो अभी कैसे पश्चिम बंगाल के जो वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस थे, सो मोदी, ओके, प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह ऑल वेंट देयर. उनकी रैलियां हुई वहां, कैंपेन हुए. ओके, so likewise that in 1974 also Indira Gandhi misused its power, okay, because she was prime minister at that time. And Allahabad High Court, where the case was filed, okay, उन्होंने अपना निर्णय दिया, अपना वर्डिक्ट दिया, ओके, अपना फैसला दिया. तो फैसला क्या दिया, जो भी आरोप लोगों ने लगाए थे कि इंदिरा गांधी हैज यूज्ड मिसयूज्ड गवर्नमेंट मशीनरीज फॉर हर कैंपेन, उनको जीतने के लिए, उनको प्रचार करने के लिए जो भी गवर्नमेंट की मशीनरी होती. अभी गवर्नमेंट की मशीनरी क्या होती, जो हमारा प्रशासन है, ओके, आवर एग्जीक्यूशन से एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो गवर्नमेंट की मशीनरी होती है. डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो गवर्नमेंट मशीनरीज होती है. सो फ्रेंड्स, जस्ट वेट फॉर अ मिनट.
Okay, now it's all right here. Okay, so Supreme Court, oh sorry, Allahabad High Court gave its verdict. Okay, that yes, Indira Gandhi has used different government machineries. Government machineries means CBI, okay, court, for example, administration. Okay, all these are considered as the government machineries. Okay, so Indira Gandhi has misused it for her election campaign. So government, okay, Allahabad High Court gave the judgment. So it happened in 1974, and because of that, it led a nationwide strikes and protest. Because of that, what happened? People get angry, okay, on Indira Gandhi, and they strike. Okay, it get resulted into nationwide strikes and the protest against her. इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे, निदर्शन होने लगे, उनका विरोध होने लगा. ओके, पूरे देश में उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी. During this time, the situation became more complicated due to the movement led by Jay Prakash Narayan. Okay, he is also called as JP, short form. So also in the same period, what happened? People were already protesting against Indira Gandhi. Okay, and Jay Prakash Narayan was the main leader at that time. Okay, so Jay Prakash Narayan also opened one another end. Okay, one another front against the Indira Gandhi. इंदिरा गांधी के खिलाफ उन्होंने अपना अलग आंदोलन शुरू किया उसी वक्त. The situation of the law and order in the country worsened, and the government declared a state of national emergency on the basis of the constitutional provisions related to the emergency. Now see, all the people are protesting against Indira Gandhi. Even in Jayaprakash Narayan, all the students from all over the country, they come together, okay, and they protested against the Indira Gandhi. Already people were protesting. Then Jayaprakash Narayan come under his okay, under his leadership against students and all other people were protesting. Because of that, what happened? Law and order situation in the country worsened. जो कायदा सुव्यवस्था होनी चाहिए देश में वो बिगड़ने लगी. ओके, इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट का देश पे कंट्रोल नहीं रहा. So because of that, what happened? Indira Gandhi took one decision, okay, that the government declared a state of national emergency. उस वक्त राष्ट्रीय आनी बानी की घोषणा की गई. ओके, उसे कहते हैं नेशनल इमरजेंसी. अभी नेशनल इमरजेंसी की जो घोषणा हुई, उसका जो प्रोविजन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है. हमारा जो संविधान है उसके अंदर उसके प्रोविजन है कि अगर देश में ऐसी ऐसी कुछ सिचुएशन आ गई तो गवर्नमेंट के पास बहुत कुछ अधिकार होंगे. गवर्नमेंट विल हैव मोर राइट्स. ओके, गवर्नमेंट कैन arrest anyone, government can jail him anyone. Okay, so because of that law and order situation, Indira Gandhi government declared a state of emergency which was based on the constitutional framework. Okay, अभी क्या हुआ, देश में आनी बानी तो लग गई. अभी आनी बानी लग गई. During this turbulent period, the fundamental rights of Indian citizens were suspended. So basically आप लोगों को पता है हमारे फंडामेंटल्स राइट. ओके, हमारे मूलभूत अधिकार आप सबको पता है, सही है. ओके, फंडामेंटल राइट्स के बारे में सबने सुना है ना. फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार मतलब क्या? आपको जो स्वतंत्रता मिली है कि आप आपके मन का कुछ भी कर सकते हैं इस देश में. यहाँ रह सकते हैं, उधर जा सकते हैं, वहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उधर खरीद सकते हैं, सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं. ओके, सरकार के खिलाफ व्यक्त हो सकते हैं. सो लाइकवाइज दैट. सो ऑल दीज फंडामेंटल राइट्स वी आर सस्पेंडेड इन दैट पीरियड. सो गवर्नमेंट ने क्या किया? किसी भी आदमी, सभी जो भी जनता थी, भारत की जो भी पॉपुलेशन टोटल थी, ओके, सिटीजन्स थे, तो उन सब के फंडामेंटल राइट्स
सस्पेंड कर दिए। उस उन्होंने क्या कि कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण हो गया, लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न निर्माण हो गया, इसीलिए हम आप सबके राइट्स सस्पेंड कर रहे हैं, और उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। द पीरियड ऑफ national emergency lasted from 1975 to 1977 and after that general elections were conducted। तो अभी हुआ क्या, उन्होंने 2 साल ये इमरजेंसी डिक्लेयर रखी देश में। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता के, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिए हो। तो इस इमरजेंसी के लिए इंदिरा गांधी की बहुत आलोचना होती है, उन्हें भला बुरा भी कहा जाता है, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ये असंवैधानिक था। ओके, संविधान के अनुसार आप किसी के भी फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं कर सकते। और उन्होंने ये भी किया, जो भी कोई आदमी उनके खिलाफ बोल रहा था, सभी को पकड़ा, सभी को जेल में ठूस दिया। ओके, व्हाट इंदिरा गांधी डिड एट दैट टाइम, टू अरेस्ट एनीवन, okay, and to jail anyone. So all the major members of the opposition party, okay, like BJP, BJP was not there, but there was Jana Sangha, okay, like was that other people left, okay, CPI, Communist Party of India. So likewise that all peoples were jailed for almost 2 years, and because of that, this is called as the emergency, and because all the rights are at the government। अभी गवर्नमेंट के हाथ में सभी कुछ राइट्स है। जिस प्रकार हुकुम शाह देश चलाता है उसका, उसी प्रकार 2 साल इंदिरा गांधी जी ने हमारे देश को चलाया। ओके, डू यू अंडरस्टैंड दिस? नो, इट इज नॉट लाइक दैट शी वाज गुड और बैड। बेसिकली whatever the situation was at that time, okay, she took the decision, but many people say that it was the wrong decision by Indira Gandhi। Okay, it was the wrong decision of Indira Gandhi because this was totally unconstitutional। Okay, so अभी क्या हुआ, 1975 तक तो ठीक था। उसके बाद इमरजेंसी लगी, 2 साल तक इमरजेंसी रही। उसमें हमारे सिटीजन्स के जो राइट्स थे फंडामेंटल्स, वो सस्पेंड हुए। किसी को भी अरेस्ट करके किसी को भी किसी के ऊपर भी केस कर सकते थे, लाइक वाज दैट। और 1977 में वो इमरजेंसी कैंसिल कर दी, और फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो राइट्स है, वो लोगों को दिए गए। और उसी वक्त 1977 में फिर लोकसभा इलेक्शन किए गए। जनरल इलेक्शंस आर नथिंग बट जब भी हम सांसद इलेक्ट करते हैं, ओके, खासदारांना जेव्हा आपण निवडतो, तर ते जेव्हा इलेक्शन असतं त्याला म्हटलं जातं जनरल इलेक्शन। ओके, सो 2 वर्षाच्या इमर्जन्सी नंतर भारतामध्ये 1977 मध्ये पुन्हा लोकसभेचं इलेक्शन घेण्यात आलं, लोकसभेच्या निवडणुका घेण्यात आल्या। On the backdrop of the emergency, many opposition parties came together and formed a party called Janata Party। Now see the situations. As I told you that all the people, okay, who were speaking against the Indira Gandhi or government of the Indira Gandhi, they were jailed, they were arrested। Okay, so what happened in 1977? They were relieved out of jail। उनकी हमने उनको जेल से छोड़ा गया। तो जो भी महत्वपूर्ण मेंबर थे अपोजिशन पार्टी के, जो विरोधी दल के थे, तो वो सब एकत्रित हुए। ओके, दे ऑल कम टुगेदर अगेंस्ट द इंदिरा गांधी एंड दे फॉर्म्ड वन पार्टी। दैट पार्टी इज कॉल्ड as जनता पार्टी। Okay, because everyone was angry on the Indira Gandhi because she has done the unconstitutional work। Okay, she was arresting anybody and jailing anybody, okay, putting case on any people। So all the major members of the opposition party or the political parties at that time were in the jail for 2 years। When they come out, obviously they formed a new party, and the name of that party was Janata Party। The Congress party led by Indira Gandhi was roundly defeated by this newly formed Janata Party। As I told you, Indira Gandhi was from the Congress party। In 1977 elections happened, and election
Janata Party was one party and Congress Party was the opposite party. So what happened? All the people were angry on the Indira Gandhi. So all the people in 1977 they voted for Janata Party. They voted against इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी के खिलाफ उन सब लोगों ने वोट दिया और जनता पार्टी जो है उसको पूरी तरह से जिता दिया. ओके. इंदिरा गांधी खुद उनके मतदार जो संघ था उसका विधान संसद का जो संघ था, ओके, जहां से वो चुनकर आई थी, तो वो वहां पर हार गई थी. ओके. So Congress, Indira Gandhi was roundly defeated by this newly formed Janata Party. Morarji Desai became the prime minister. But okay, so what happened now? Indira Gandhi was not elected. His party defeated by the Janata Party. So one leader from the Janata Party, that is Morarji Desai, he became the prime minister of India in 1977. Okay, but under his leadership, the Janata Party government couldn't last long due to internal differences. Okay, now consider one thing. Okay, Indira Gandhi's party has fully defeated. Now Janata Party's government is there, and in there, Prime Minister was Morarji Desai. But you know what? Janata Party was found by many opposition leaders, many political leaders. Okay, because of that, there was many differences in that. ओके, उनके अपने मतभेद थे, उनके ओपिनियन अलग अलग थे. उस वक्त से क्या हुआ, उस वजह से वो जो जनता पार्टी की सरकार थी वो ज्यादा वक्त तक रही नहीं. ओके, वो ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाई. अभी 1977 में अगर इलेक्शन हुआ है तो 5 साल तक जनता पार्टी का सरकार रहना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. 3 साल में उतने आपस में ओके जो अनबन रही उसकी वजह से वो सरकार गिर गई. ओके. So Janata Party government couldn't last longer due to internal differences. Charan Singh succeeded him, but even his government was a short-lived one. Okay, when Morarji Desai given the resignation, after that Charan Singh became the prime minister from the Janata Party. Okay, but his government was a short-lived government. इसका मतलब उसका जो गवर्नमेंट था चरण सिंह का, उनका भी गवर्नमेंट ज्यादा देर तक रहा नहीं. मतलब देखो 3 साल में दो दो प्राइम मिनिस्टर हुए. एक हुए मोरारजी देसाई कुछ दिन पहले, उसके बाद चरण सिंह हुए, वो थे जनता पार्टी की तरफ से. इलेक्शंस वेयर कंडक्टेड वंस अगेन इन 1980. मग क्या हुआ, अगर सब लोगों में डिफरेंसेस है, किसी की आपस में बन नहीं रही तो गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे. तो वो गवर्नमेंट गिर गई 3 ही साल में. और उसके बाद जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी फिर से इलेक्शन लड़ी 1980 में. ओके, द कांग्रेस पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी कम टू पावर अगेन. और 1980 में जब 1977 में कांग्रेस को पूरी तरह से हरा दिया था, लेकिन लोगों को पता चला कि यार ये जनता पार्टी के जो लोग हैं उनके आपस में ही बन नहीं रही. एक आदमी ये कहता है, प्राइम मिनिस्टर अलग बात कहता है, एक दो दो प्राइम मिनिस्टर हुए हैं. तो लोगों ने फिर से इंदिरा गांधी को और कांग्रेस को 1980 के चुनाव में जिता दिया. सो कांग्रेस एंड इंदिरा गांधी ओन द इलेक्शन इन 1980. 1980 में इंदिरा गांधी फिर इलेक्शन जीती. सो देखिए हमने अभी इसमें क्या क्या देखा. 1970, 71 में वॉर, 72 में फेमिन हो गया, 74 में हमने क्या किया, एटॉमिक एनर्जी का जो टेस्ट था वो ले लिया. उसके बाद 75 में सिक्किम हमारे यहाँ आया, ओके, इंडिया को जुड़ गया. ओके, उसी वक्त 1974 में डिसीजन आया इंदिरा गांधी के खिलाफ कि उन्होंने हमारे गवर्नमेंट का गलत इस्तेमाल किया है इलेक्शन जीतने के लिए. फिर लोगों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन चालू किए. सो 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या किया, इमरजेंसी लगा दी. अभी इमरजेंसी में सभी जो इलेक्शन के पॉलिटिकल मेंबर थे उनके खिलाफ बोलने वाले उन सबको जेल में ठूस दिया उन्होंने. ओके, जेल में ठूस दिया और 2 साल तक वो जेल में रहे. फिर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी उठाई 1977 में. तो वो जेल में जो जो लोग गए थे उन सब ने मिलाकर अपनी पार्टी बनाई और 1977 में जो इलेक्शन थे उन्होंने वो जनता पार्टी करके चुन कर आए. ओके, फिर मोरारजी देसाई पंतप्रधान बने, लेकिन मोरारजी देसाई भी ज्यादा देर तक रहे नहीं, क्योंकि वो पार्टी में बहुत सारे अलग अलग
लोग थे, उनकी अलग अलग आकांक्षी थी। ओके, अलग अलग उनकी नीड्स थी। उसके बाद चरण सिंह ने 1980 तक प्राइम मिनिस्टर रहा, लेकिन फिर वो सरकार गिर गई और 1980 में फिर इलेक्शंस हुए और इंदिरा गांधी फिर एक बार बहुत ज्यादा नंबर से जीत गई। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट हैपेंड इन 1970s। अभी हम देखेंगे 1980 से आगे क्या हुआ। ओके, सो यू अंडरस्टैंड दिस? एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दिस? ओके, ऑल राइट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए अभी क्या हुआ 1980 में, देखेंगे क्या हुआ ड्यूरिंग दिस डिकेड। ओके, दी 80s, 1980s, during this decade the Indian political system faced many challenges। अभी क्या हुआ देखो, हमारा देश चलता है संविधान से। ओके, और 1980 में चुनकर आई इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, कांग्रेस की सरकार आई। लेकिन उसी डिकेड में, 1980 के डिकेड में, मतलब क्या 1980 से 1990 तक हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है देश की, उस उन्होंने बहुत चैलेंजेस फेस किए। ओके, पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया फेस्ड मेनी चैलेंजेस इन 1980s। The Sikhs in Punjab demanded an independent state of Khalistan and began a movement which went on to become violent and destructive। अभी देखिए हुआ क्या, पंजाब हमारे देश में है। सो 1980 के बाद प्राइम मिनिस्टर जब इंदिरा गांधी थी, तो पंजाब के कुछ लोगों ने कहा कि हमें अपना अपना अलग देश चाहिए। वी वांट आवर ओन नेशन, एंड व्हाट विल द नेम ऑफ द नेशन? द नेम विल बी खलिस्तान। Okay, so Sikhs in the Punjab demanded for independent state called as Khalistan and began a movement which went on become violent and destructive. So to fulfill their need, okay, what they do? They started a movement। उन्होंने एक चळवळ शुरू की, उन्होंने एक मूवमेंट शुरू की और आगे देखते देखते वो मूवमेंट बहुत ही वायलेंट हो गई। ओके, और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो गई। मतलब वो जो मूवमेंट शुरू की थी वो आतंकवादी मूवमेंट बन गई। ओके, उसमें बहुत, वी कैन से, दंगल जो होती है, दंगल होने लगी उस राज्य में, पंजाब में। एंड उसकी वजह से भारत में और पंजाब में बहुत डिस्ट्रक्शन होने लगा। बहुत डेंजरस सिचुएशन उस वक्त पंजाब में थी। पंजाब हैड लेंट इट्स सपोर्ट टू दिस, सॉरी, पाकिस्तान हैड लेंट इट्स सपोर्ट टू दिस मूवमेंट। नाउ सी, हमारा परम मित्र जो है, कौन है हमारा परम मित्र? पाकिस्तान। ओके, तो जब भी हमारे देश में ऐसा कुछ होता है, ओके, उसमें उंगली करने की आदत पाकिस्तान को ऑलरेडी है। तो उन्होंने, पाकिस्तान ने उस वक्त भी क्या किया, उन्होंने खालिस्तान को सपोर्ट किया। दैट डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट दैट वाज लेड बाय द शिख्स इन द पंजाब फॉर द खालिस्तान, इट वाज by the support of Pakistan। Pakistan was providing them guns, rifles, grenades, okay, military equipments like that। So Indian army was sent into the Golden Temple at Amritsar, a holy shrine of the Sikhs in 1984। तो हुआ क्या अभी देखिए, जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि वो जो मूवमेंट है वो आतंकवादी मूवमेंट में कन्वर्ट हो गई। So that movement get converted into a terrorist movement, and all the terrorists from that Khalistan, they were hides. Okay, they were hidden in the Amritsar। Okay, that is Golden Temple of the Amritsar। We know that how important is Golden Temple for the Sikh people। सिख लोगों के लिए गोल्डन टेम्पल कितना इंपॉर्टेंट है हमें पता है। ओके, वो बहुत ही उनके लिए पवित्र है, होली है। ओके, सो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जो टेररिस्ट थे, जो खालिस्तान की मांग कर रहे थे, वो गोल्डन टेम्पल में जाके छुप गए। अभी उनको क्या लगा कि गवर्नमेंट जो हमारा पवित्र टेम्पल है उसमें आ नहीं सकती, क्योंकि अगर वो आएगी तो हमारा उससे सम्मान टूट जाएगा। जो गुरु नानक साहब की वहां पर जो कुछ है श्राइन, ओके, तो वो टेम्पल में छुप कर रहे और वहां से वो अपना काम चलाने लगे, गलत काम करने लगे। ओके,
टेररिस्ट एक्टिविटीज वहां पर से करने लगे। लेकिन इंदिरा गांधी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने उनको दाद नहीं दी। ओके, उन्होंने कहा अगर तुम टेम्पल में घुस सकते हो हमारे देश से बचने के लिए, आर्मी से बचने के लिए, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम टेम्पल में आकर मारेंगे आपको। ओके, सो फॉर दैट पर्पज द इंडियन आर्मी वाज सेंट टू इनटू द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर, अ होली श्राइन ऑफ द सिख्स इन 1984। अभी ये क्या हुआ, कब हुआ, आर्मी कब उस गोल्डन टेम्पल में घुसी, वो घुसी 1984 में। वो किस लिए घुसी, क्योंकि वो जो आतंकवादी थे, टेररिस्ट थे खलिस्तानी मूवमेंट के, उसका खात्मा करना था। इसलिए इंदिरा गांधी ने कहा कि आप उसमें घुस जाइए और उसका खात्मा कर दीजिए। टू evict the terrorist who had allegedly taken shelter over there. So what was for this? To evict the terrorist मतलब आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए, who had allegedly taken shelter there म्हणजे जिन्होंने वहां पर आश्रय लिया था, शरण ली थी, वह छुप कर बैठे थे, उनको बाहर निकालने के लिए in 1984 army was sent in the golden temple. One of the Sikhs bodyguard in Indira Gandhi's personal security assassinated her. Now see friends, as I told you that golden temple is very important, okay, for Sikh community. It is very holy place, पवित्र जगह है। अभी उसमें क्या हुआ, खून खराबा हुआ। कैसे हुआ, टेररिस्ट तो वैसे ही वहां पर छुपी रही थी, अभी उनको निकालना जरूरी था, क्योंकि वो हमारे देश में फूट पड़ रहे थे, हमारे देश के टुकड़े करने के लिए कुछ कार्रवाई कर रहे थे। तो इंदिरा गांधी ने जैसे आर्मी को अंदर भेजा और आर्मी के लोगों ने वहां पर गोलियां बरसाई। ओके, ऑल द टेररिस्ट वेयर डेड एट दैट प्लेस, सभी आतंकवादियों को मार दिया, टेररिस्ट को मार दिया। लेकिन हुआ क्या, जो जो सिख लोग थे वो भड़क गए कि हमारे इतने पवित्र जो जगह है वहां पर आपने आर्मी भेजकर ये जो खून खराबा किया है वो हमें पसंद नहीं आया। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट सम सिख पीपल गेट इंसल्टेड। ओके, they thought it is insult of our people that you are going in the golden temple. Okay, so you understand right now, up to now? Hello. Okay, okay, now see the next situation. We know that there are bodyguards for any prime minister. Okay, so for that purpose, for their security, there was one Sikh bodyguard for Indira Gandhi. ओके, इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड थे उनमें एक सिख बॉडीगार्ड था। अभी एज आई टोल्ड यू दैट इंदिरा गांधी गेव द ऑर्डर टू आर्मी टू एंटर द गोल्डन टेम्पल। बिकॉज ऑफ दैट दैट सिख पीपल गेट इंसल्टेड एंड दिस सिख बॉडीगार्ड असासिनेटेड हर। उसी वजह से, उसी नाराजगी की वजह से जो सिख बॉडीगार्ड था उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी पर गोलियां चलाई और उनकी हत्या कर दी। No, it is not like that golden temple is open for Sikhs. It is open, you can also go there, no issues. There is no any restrictions. Okay. Okay. तो अभी इंदिरा गांधी की तो हत्या हो गई, ये कब हुआ, इन 1984. So all this happened in 1984. One of the Sikh bodyguard in the Indira Gandhi's personal security assassinated her, मतलब उनकी हत्या की गई। During this period, an organization called United Liberation Front of Assam, that is ULFA in short, carried on a major movement in Northeast India. अभी क्या हुआ देखो, in 1984 इंदिरा गांधी की हत्या हुई, she got assassinated. After that, in the same time, we know Northeast India, Assam, okay, Arunachal Pradesh, Tripura, Mizoram, Nagaland, Manipur, likewise that. So at that place, an organization called United Liberation Front, वहां पर एक organization की स्थापना हुई। Okay, one organization was established over there, and what was the name of that? United Liberation Front of Assam. So in short, it is called as ULFA. आसाम का जो भी रीजन है, तो उस आसाम के रीजन में ये जो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट है, उन्होंने एक ऑपरेशन कैरी आउट किया, उन्होंने एक मेजर मूवमेंट शुरू की। तो उनकी भी क्या मूवमेंट थी, उनका भी कहना यही था कि हमें अपना अपना अलग देश चाहिए, उल्फा की। ओके,
सो अभी देखिए, इन 1984 इंदिरा गांधी गॉट assassinated. Right after Indira Gandhi's assassination in 1984, राजीव गांधी became the Prime Minister of India. अभी देखो, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, उनका पुत्र कौन है? इंदिरा गांधी के बाद, उनकी हत्या के बाद उनका पुत्र राजीव गांधी, जो एक पायलट थे, ओके, वो हो गए हमारे प्राइम मिनिस्टर. ऑलराइट. ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द assassination of Indira Gandhi in 1984. He tried to make several reforms in the field of Indian economy and that of science and technology. When he became the prime minister, what he contributed to country? Okay, he tried to make several reforms in the field of Indian economy. Okay, हमारी जो भी इकोनॉमी उस वक्त चल रही थी, उसको इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए several reforms were brought out by the government of Rajiv Gandhi because he was the prime minister at that time. Okay, also in the science and technology also he taken many important initiatives, many important reforms, so that there will be growth in science and technology in India. He took the lead in solving the issues of Tamil minority in Sri Lanka. Okay, we know that Sri Lankan people. In Sri Lankan people, there are many people who are Tamil. Okay, श्रीलंका में तमिल लोग रहते हैं, यानी तमिल लोग तमिलनाडु भी रहते हैं. मतलब क्या है, इंडिया के भी लोग, इंडिया के ही लोग वहां पर बहुत सालों से रह रहे थे. अभी हुआ क्या, जो श्रीलंकन की वहां की पॉपुलेशन थी, वो तमिल लोगों को वहां से निकल रही थी. तो इंदिरा गांधी ने वहां पर इंटरफेरेंस किया. उन्होंने कहा कि जो वहां पर तमिल माइनॉरिटी है श्रीलंका में, यू शुड टेक केयर ऑफ दैट. आपको उन लोगों की परवाह करनी चाहिए, उन लोगों को सब राइट्स देने चाहिए. इसलिए उन्होंने इंटरफेयर किया श्रीलंका में. ही प्रमोटेड द आइडिया ऑफ यूनाइटेड श्रीलंका with internal autonomy to Tamil community, but his efforts in this regard proved to be in vain. So basically what he tried to unite the Sri Lanka. Okay, in Sri Lanka there was two type of people, Sri Lankan people and Tamil people. Tamil people were in a minority, अल्पसंख्यक थे. तो इंदिरा गांधी जी ने, सॉरी, राजीव गांधी ने उस वक्त जब वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने प्रयास किया कि हम क्या करेंगे, आप लोग तमिल लोगों को वहां पर स्पेशल ऑटोनॉमी दीजिए, वहां पर उनको सुरक्षा दीजिए. ओके, बट हिज एफर्ट्स इन दिस रिगार्ड प्रूव्ड टू बी इन वेन. मतलब उनके ये जो उस बारे में जो उनके एफर्ट्स थे, ओके, जो भी कार्य वो उसके लिए कर रहे थे, वो फुलफिल नहीं हुए. ओके, ही फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करेक्शन that took place during the defense equipment deal, especially the purchase of long-range cannons from the foreign company called Bofors. Have you heard about the name Bofors? Bofors Tof. Cannon means Tof. Anybody who have heard this name Bofors? ओके ओके. तो क्या हुआ, इंडिया ने उस वक्त जो बोफर्स तोप थी वो फॉरेन कंट्री से लेना, ओके, उसका विचार किया और वो लेने के लिए शुरू किया. बट हुआ क्या, प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी उस वक्त, और लोगों ने बहुत आरोप किया कि ये जो सौदा हुआ है बोफर्स तोप के लिए, हमारे आर्मी के लिए वो जो तोप लेने हैं, ओके, तो उसमें बहुत बड़ा करप्शन हुआ है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है. ओके, ही फेस लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म. उनको बहुत सारा क्रिटिसिज्म सहना पड़ा उस वक्त. ओके, फॉर द करेक्शन. करेक्शन कहाँ पर टेक हुआ, वो करप्शन हुआ जो बोफर्स तोप की डील हुई थी, दूसरे देश से हम उसे खरीद रहे थे हमारे आर्मी के लिए, तो उसमें बहुत ज्यादा करप्शन हुआ, ऐसा आरोप राजीव गांधी पर किया गया. और वो करप्शन उनकी पार्टी ने किया, ऐसा सब लोग कहने लगे. Okay, political corruptions become a crucial issue in the general election.
that followed and the Congress party was defeated. अभी क्या हुआ, उस वक्त जब कांग्रेस पार्टी पे इतने सारे आरोप हुए, राजीव गांधी पर इतने सारे आरोप हुए करप्शन के, तो लोगों ने क्या किया, 1989 में जो इलेक्शन हुआ, ओके, 1989 इलेक्शन हुआ, तो उस इलेक्शन में कांग्रेस को फिर से हरा दिया लोगों ने, बिकॉज लोगों के मन में कांग्रेस के खिलाफ बहुत ज्यादा चिढ़ थी कि उनके लोगों ने, प्राइम मिनिस्टर ने बोफर्स जो डील थी उसमें करप्शन किया, ओके। So Congress party was defeated. Several political parties formed a coalition called the Janata Dal, and Vishwanath Pratap Singh became the next Prime Minister of India. अभी क्या हुआ, उस वक्त कांग्रेस लड़ी, कांग्रेस के खिलाफ और बहुत सारी रीजनल पार्टीज भी लड़ी, ओके। किनके 4 सीट आए, किनके 100 आए, किनके 50 आए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोalition फॉर्म किया, उन्होंने अपना गठबंधन तैयार किया, और उनके गठबंधन में जितने सांसद थे वो, ओके, 50% से ज्यादा आ गए, उसका मतलब उन्हें बहुमत मिल गए, मेजोरिटी मिल गई, और उनमें से एक जो सांसद था, एक जो खासदार था, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो वो खासदार कौन था, उस गठबंधन को नाम दिया गया जनता दल। विश्वनाथ प्रताप सिंह बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस इज कंसिडर्ड टू बी हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। अभी देखो, विश्वनाथ प्रताप सिंह बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1989। अभी उन्होंने हमारे देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया। सो व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन, द पॉलिसी फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशंस फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, दैट इज ओबीसी। जो भी ओबीसी लोग हैं उनके लिए उन्होंने रिजर्वेशन प्रोवाइड किया, रिजर्वेशन दिया गया, ओके। और उसके कालखंड की, उस पंत प्रधान की, मतलब प्रताप सिंह की, विश्वनाथ प्रताप सिंह की ये बड़ी उपलब्धि है, ये उनका बड़ा कार्य है कि उनके प्राइम मिनिस्टर रहते उन्होंने जो भी बैकवर्ड क्लास थे, अदर बैकवर्ड क्लास दैट इज ओबीसी, उनको आरक्षण दे दिया, रिजर्वेशन दे दिया। ही कुड नॉट कंटिन्यू एज प्राइम मिनिस्टर ड्यू टू इंटरनल डिफरेंसेस इन द पार्टी। अभी हुआ क्या, देखो, मैंने आपको बताया 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, उसमें भी क्या हुआ था, बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर चुना था। अभी 1989 में भी वही हुआ, कांग्रेस हार गई, और जो बाकी छोटे छोटे पार्टी थे वो, उन्होंने अपना गठबंधन बना लिया और उनमें से एक नेता चुनकर प्रधानमंत्री हुआ। कौन हुआ वो, विश्वनाथ प्रताप सिंह। लेकिन वो भी ज्यादा देर तक रहा नहीं, क्योंकि आपको पता है अगर बहुत सारे पार्टी एकत्र आ गए, ओके, और एकत्रित हो गए, तो होता क्या है, अलग हर एक पार्टी को लगता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, हमारा हमें ये खाता मिलना चाहिए, हमें ये मंत्रालय मिलना चाहिए, ये मिनिस्ट्री हमारा मंत्री होना चाहिए, ओके। सो बिकॉज ऑफ दैट some internal differences get created in the party. So same situation happened in 1989. So also he gave the resignation, विश्वनाथ प्रताप सिंह। नाउ इन 1990s, मतलब इलेक्शन के सिर्फ एक साल बाद, चंद्रशेखर बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन हुए, चंद्रशेखर। हिज गवर्नमेंट वाज आल्सो शॉर्ट लिव्ड, मतलब क्या, उनका भी गवर्नमेंट ज्यादा देर तक टिका नहीं, ज्यादा देर तक रहा नहीं, ओके। एक साल में वो भी खत्म हो गया, क्योंकि उनकी आपस में बन नहीं रही थी, वो जो गठबंधन हुआ था उनकी आपस में अनबन हो रही थी during the election camp, okay. So this government also short lived. In 1991, during the election campaign, the terrorist organization in Sri Lanka, Liberation Tigers of Tamil Ilium, that is LTTE, लिट्टे, assassinated राजीव गांधी। अभी देखिए, राजीव गांधी पंतप्रधान थे कब तक, he was the prime minister up to 1989. In 1989 what happened, Congress party defeated, Rajiv Gandhi also, because of that his party defeated, okay. So after that 1 year, one person become prime minister, Vishwanath Pratap Singh, okay. After that Chandrasekhar become the prime minister, but this government also short lived, मतलब इलेक्शन होने के 2 साल बाद ही गवर्नमेंट गिर गया और हमारे देश को फिर से इलेक्शन लेने पड़ गए।
सो ये 1991 में क्या हुआ था, इलेक्शन के लिए राजीव गांधी जो थे वो तमिलनाडु में गए थे और वहां के लोगों को वो अपना कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे थे, अपने दल का प्रचार कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, आपको जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि राजीव गांधी जी इंटरफेयर कर रहे थे जो श्रीलंका है उसमें, वो तो ओके, वो श्रीलंका में इंटरफेयर कर रहे थे, इसलिए वहां पर एक ग्रुप प्राइम राजीव गांधी पे बहुत ज्यादा नाराज था, बहुत ज्यादा गुस्सा था। उन्होंने क्या, जब वो 1991 में इलेक्शन के लिए आए तो उन्होंने राजीव गांधी की हत्या कर दी। तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, ऑर्गेनाइजेशन थी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलियम। ओके, इन 1991 राजीव गांधी वाज assassinated by the LTTE। बोफर्स मींस वो कंपनी का नाम है। ओके, बोफर्स कैनन, बोफर्स कंपनी का नाम है। ओके, सो डू यू अंडरस्टैंड अप टू नाउ? 80s में इलेक्शन हुआ, कांग्रेस पार्टी जीत कर आई, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुई। उसके बाद जो सिख लोग थे उन्होंने खालिस्तान शुरू किया मूवमेंट, और वो जो आतंकवादी थे वो गोल्डन टेम्पल में छुप गए, उनको मारने के लिए आर्मी भेजा गया। लेकिन उसकी वजह से 6 सिख पीपल जो थे वो नाराज हो गए, उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी बॉडीगार्ड ने। उसके बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। ओके, 1984 में। ओके, फिर उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देश को आगे लेने के लिए और हमारी जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है उसको सुधारने के लिए बहुत सारी रिफॉर्म्स किए। ओके, सो लेकिन उस पर उनके ऊपर आरोप होने लगे कि उन्होंने जो देश के लिए आर्मी के लिए डील की थी, डिफेंस डील, बोफोर्स कैनन लेने की, उसमें उन्होंने भ्रष्टाचार किया, इससे उनको आरोप हो गए। तो लोग उस पर नाराज हो गए। उन्होंने क्या किया, कांग्रेस पार्टी को 1989 में हरा दिया। ओके, हरा दिया। वो बाकी के जो लोग थे या पार्टीज थी वो चुनकर आई। ओके, छोटे 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 पार्टियां चुनकर आई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना गठबंधन बनाया और अपना एक उनमें से एक नेता चुना और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया। ओके, तो वो प्राइम मिनिस्टर सिर्फ 2 साल तक रहा, 1 साल तक। उनका नाम था प्राइम मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह। He remained the prime minister for 1 year, and he given the reservation for the OBC people. After that, there was a differences in party. Another Chandrasekhar became prime minister for 1 year. Okay, he was also the prime minister for 1 year only. Okay, couldn't last long. His government collapsed. Then 1991 में फिर इलेक्शंस हुए, उसमें जो प्रचार करना था वो प्रचार करने के लिए राजीव गांधी जी कांग्रेस की तरफ से गए और तमिलनाडु में उनकी हत्या हो गई। वो हत्या किसने की, जो उन पर नाराज LTTE जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इट वाज फ्रॉम द श्रीलंका। ओके, एंड दे assassinated राजीव गांधी। ओके, so understand up to now? Anybody having any doubt? Okay, are you able to understand now all these things how I am telling you step by step, one by one? Okay, okay, now let's see. Towards the end of the decade of 1980s, the unrest in Jammu and Kashmir had begun. अभी देखिए, 1980 में इंदिरा गांधी चुनकर आई, कांग्रेस चुनकर आई। उसी वक्त क्या हुआ, जो हमारा जम्मू कश्मीर का इलाका है, जम्मू कश्मीर के इलाके में भी अनरेस्ट ओके शुरू हुई। मतलब क्या, वहां पर भी अनबन शुरू हुई, वहां पर भी आतंकवादी जो घटनाएं घट रही है, वो आतंकवादी बहुत सारे आने लगे। ओके, सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ decade 1980s, unrest in Jammu and Kashmir had become। ये जो 10 साल है, ओके, उस 10 साल में 1980 से 1990, ओके, 1990, इस 10 साल में
कश्मीर में भी बहुत ज्यादा अनरेस्ट शुरू हुई, कश्मीर में भी बहुत ज्यादा टेररिज्म शुरू हुआ। The terrorist activities there forced the Kashmiri Pandits to leave the valley. अभी क्या हुआ, वहां पर जो कश्मीरी पंडित रह रहे थे कश्मीर में, उन लोगों को, जो मुस्लिम पीपल थे वहां के, उन्होंने हकाल दिया, निकाल दिया, कत्ल कर दिया उनका। ओके, तो वो पीपल भागकर भारत के दूसरे इलाके में आ गए, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जो भी प्लेसेस है, तो वो कश्मीर से उन्हें भगा कर दिया, उनके अपने घर से भगा कर दिया। औरतों को, बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ दी, पीड़ा दी, रेप हुए, कत्ल हुए उनके। और 1990 में उन लोगों को, जो भी हिंदू पीपल थे वहां पे, पंडित पीपल थे, कश्मीरी पंडित उनको कहा जाता है, तो उन पीपलों को कश्मीर वैली से, कश्मीर घाटी से निकाल दिया गया। दिस प्रॉब्लम ग्रीव सीरियस डे बाय डे एंड टुडे इट हैज टेकन अ फॉर्म टेररिज्म। मतलब तब से लेकर आज तक ये जो प्रोसेस है वो लगातार बढ़ रही है। और आप हर बार न्यूज में देखते हैं कि कश्मीर ने सुरक्षा बलों में दो आतंकियों को ढेर किया, 5 आतंकवादी मारे गए, 2 आतंकवादी यहाँ पर छुप रहे हैं, ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन जारी है। सो लाइक दिस न्यूज यू माइट हैव हर्ड, ओके, ऑन न्यूज, ओके, ऑन न्यूज चैनल्स। तो देखिए 1980 से लेकर 1990 तक इतनी सारी घटनाएं घटी। ओके, सो मुझे लगता है आज तक हम इतना ही देख सकेंगे, क्योंकि अभी टाइम भी हो गया है। लेकिन अभी आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अभी इसको आप फिर से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे और नहीं, बताइए मुझे। Is information sufficient that I am giving you? Okay, all right. Good night. Good night. Good night, everyone. Okay, all right, all right. Brother Vishal, I'm doing it because आप लोगों ने ये नहीं कहना चाहिए कि हमें समझा नहीं, ओके, टॉपिक समझ में नहीं आया, इसलिए I try to repeat. Okay, goodbye, good night. You can leave the class now.